Hello students, today we are going to start exogenetic processes part first. This is the third one lesson of 9th standards geography. Here first of all we have to understand the title of this lesson, exogenetic. Exogenetic means external processes. When we think about the external processes, it includes various types of factors or various types of elements like solar energy, kinetic energy. In kinetic energy, we can say running water and blowing wind, then gravitational pull. So these are some factors, and these factors are called external or exogenetic factors. Due to these exogenetic factors, rock will get disintegrate or rock will break into pieces. Here on the screen we can see one rock is there and its layers are going outside like an onion. जैसे कि ओनियन होता है, जैसे कि प्याज का हम देखेंगे ऊपर का छिलका निकालेंगे तो अंदर का छिलका ओपन हो जाता है, और एक छिलका निकालेंगे तो जैसे हम छिलके निकालते हैं प्याज के, वैसे ही यहाँ पे रॉक के बारे में देखा जा सकता है। तो ऊपर का लेयर इन एक्सोजेनेटिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण ऊपर का लेयर जो है वो निकल जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स या रॉक के फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। जैसे कि कुछ जगह पे डिसइंटीग्रेशन होता है, रॉक जो है वो ब्लॉक में डिवाइड होता है, रॉक डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं। कुछ जगह पे रॉक के टुकड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेशन हो जाता है रॉक का इन एक्सोजेनेटिक फैक्टर्स के कारण। अब इन एक्सोजेनिक फैक्टर्स के कारण रॉक जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है। इस प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है। पहले हम वेदरिंग की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदरिंग? ब्रेकिंग और वीकेनिंग ऑफ रॉक्स इज अ नेचुरल फिनोमेना, इट इज कॉल्ड वेदरिंग. So weathering, it is a natural phenomena, means disintegration or breaking of rock. That process is called weathering, and weathering can be divided into three parts. First one is mechanical, that is called physical weathering. Second one is chemical weathering, and third one is biological weathering. First of all, we have to understand the meaning of mechanical weathering. Mechanical weathering has another alternative name, that is called physical weathering. Why it is called physical weathering? Because it includes physical factors, physical elements like running water, blowing wind. Such type of physical factors can be included in mechanical weathering, and such type of weathering will take place in arid climates. Then second one is chemical weathering. It is related with chemical, means whatever the chemicals are contained in rock, due to the expansion and contraction of the chemical in rock will get disintegrate or rock will break into pieces. So that type of weathering is called chemical weathering, and such type of weathering can be seen in humid climates. Then biological weathering. Such type of weathering will take place due to some biological factors. Biological factors will be included trees, mice, rabbits, and human beings, or ants also. So such type of weathering is called biological weathering. One by one we will see in detail. First of all, we have to see mechanical weathering. Take an example of onion. अब यहाँ पे हम प्याज का एक एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हमें प्याज दिखाई देता है। तो जैसे प्याज की कंडीशन हम देखेंगे तो प्याज का ऊपर का छिलका हम निकालेंगे तो अंदर का छिलका ओपन हो जाता है। मतलब जितने छिलके हम उस प्याज के निकालेंगे उतने निकल सकते हैं। जैसे हम प्याज का छिलका समझो निकालते हैं तो नीचे का जो लेयर होता है, उसका जो छिलका होता है वो बहुत ही हमें अच्छा दिखता है, क्लियर क्लीन दिखता है। और समझो वही प्याज हम 2-3 दिनों तक कहीं पे रख देते हैं तो उसका जो लेयर है जो कि हमें क्लीन दिखता है
वो हमें 2-3 दिनों के बाद वो सूख जाता है। फिर से वो हम छिलका निकालेंगे तो नीचे का छिलका वही मतलब अच्छा दिखता है। तो यही कंडीशन हम रॉक के बारे में भी देख सकते हैं। जो रॉक का ऊपर का लेयर है वो टेम्परेचर के कारण या एक्सटर्नल एलिमेंट्स के कारण वो निकल जाता है और नीचे का लेयर बाद में ओपन हो जाता है, और कुछ सालों के बाद वो जो नीचे का लेयर हमें निकला हुआ जो देख सकते हैं वो फिर से उसका लेयर जो है वो निकल सकता है। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो एक्सफोलिएशन कहा जाता है। तो इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द रॉक heats more while the inner part is comparatively cooler. As a result, the outer layers of the rock fall apart from the main rock. This is called exfoliation of the rock. Means the outer layer will get more energy or more temperature when we compare with the inner part of that rock. Inner part is cooler and outer part is hot. So due to the hot temperature, due to sun rays which are falling on that outer layer of that rock, the outer layer will get disintegrate, or that outer layer will get away from the main rock. So due to the inner energy, inner temperature and outer temperature, outer layer will get away from the main rock. That process is called exfoliation of the rock. Here we can see one picture is there. In this picture we can understand the outer layer is getting away from the main rock, or it is removing from the main rock due to temperature. Now we have to understand which type of factors can be included in mechanical weathering. Here are some factors like temperature, frost, crystal growth, release of pressure, water. These are some factors which are responsible for mechanical weathering. Now we will see one after another each factor. First of all, we will see temperature. How temperature is influencing on rock. The minerals in the rocks expand because of heat and contract when temperature decreases. सी नाउ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर रॉक के डिसइंटीग्रेशन के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। तो टेम्परेचर के कारण, हीट के कारण रॉक जो होता है वो कभी कभी एक्सपांड होता है, कभी कभी उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन के कारण भी रॉक जो है वो टुकड़ों में टूट जाता है। Due to such continuous contracting and expanding, tension develops in the rock particles. Each mineral reacts differently to the temperature. Some minerals expand more while others do not expand as much. Consequently, the tension formed in the rocks also increases and decreases. मतलब यहाँ पे जो रॉक है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन की प्रोसेसेस उसमें बार बार होने के कारण रॉक जो है वो पार्टिकल्स में बढ़ जाता है। इवन कुछ उसमें जो मिनरल्स होते हैं रॉक में, कुछ मिनरल्स ज़्यादा एक्सपांड होते हैं टेम्परेचर बढ़ जाने के बाद, और कुछ मिनरल्स टेम्परेचर कम होने के बाद उनका कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन ज़्यादा प्रोसेस होने के कारण रॉक जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है, टूट जाता है। As a result, cracks develop in the rocks and they break in areas where the daily range of temperature is higher. Weathering of this type is common in the hot desert. अब ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे टेम्परेचर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन की जो स्थिति है वो एक्सट्रीम जहाँ पे होती है, ऐसे ही क्लाइमेट में रॉक जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है। जैसे कि हम डेजर्ट एरिया में देखेंगे तो वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब रात में वहाँ पे बहुत ही टेम्परेचर कम होता है और दिन में बहुत ही टेम्परेचर हाई होता है। हम यहाँ पे हमारे एरिया में देखेंगे तो हमारे यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर देखा जा सकता है। अभी 32 होता है दिन का और 27-28 डिग्री सेल्सियस वो रात का होता है। लेकिन हम
डेजर्ट एरिया की बात करेंगे तो वहाँ पे दिन का टेम्परेचर 40-50 होता है और रात का टेम्परेचर होता है 5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से टेम्परेचर होता है। तो ये टेम्परेचर वहाँ के रॉक को डिसइंटीग्रेट करता है क्योंकि वहाँ पे एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ये प्रोसेसेस ज़्यादा होती है, तो इसके कारण वहाँ पे ये वेदरिंग टेम्परेचर के कारण हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वन फैक्टर है जो कि फ्रॉस्ट। अब फ्रॉस्ट कैसे इन्फ्लुएंस करता है रॉक को डिवाइड करने के लिए, तो उसके बारे में हम देखेंगे। पहले हमें समझना होगा कि जो वाटर और सॉलिड फॉर्म में जो वाटर होता है जिसको कि हम आइस बोलते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है। लिक्विड फॉर्म में जो वाटर होता है उसका वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है, मतलब उसको जगह कम लगती है, लेकिन उसी पानी को, उसी वाटर को हम जब कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में तब उसको ज़्यादा जगह लगती है, मतलब उसका जो वॉल्यूम रहता है वो बढ़ जाता है, एक्सपांड हो जाता है। तो इस एक्सपांशन के कारण भी क्या होता है कि रॉक डिसइंटीग्रेट होता है। तो वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। पहले हम यहाँ पे उसके बारे में जानकारी लेंगे कि ये कहाँ पे होता है। You know that the volume of the water increases when it freezes. In areas where the temperatures drop below 0 degree Celsius for quite some time, the water accumulated in the cracks and crevices in the rocks freezes. This leads to tension in the rocks and they shatter. अब ये कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे जो रॉक में जो क्रैक्स होते हैं, क्रिवाइसेस होते हैं, वहाँ पे पानी के कुछ बूंदे एक्यूमुलेट होते हैं। जब टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तब ये जो पानी के बूंदे हैं जो कि रॉक के कुछ क्रिवाइसेस और क्रैक्स में एक्यूमुलेट हुआ जो पानी है वो कन्वर्ट होता है सॉलिड में, आइस में। हमने देखा है कि पानी को, लिक्विड को कम जगह लगती है और जब उसका कन्वर्जन सॉलिड में होता है तब उसको ज़्यादा जगह लगती है। तो जब ये पानी एक्यूमुलेटेड कन्वर्ट होता है सॉलिड में तब वो एक्सपांड होता है। तो एक्सपांड होने के कारण उसका जो टेंशन होता है वो रॉक के ऊपर भी आता है और रॉक के ऊपर आने के बाद रॉक जो है वो इस तरीके से टूट जाता है, तो रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम मैकेनिकल वेदरिंग बोल सकते हैं कि जो फ्रॉस्ट के कारण हो सकती है। नेक्स्ट वन फैक्टर है जो कि क्रिस्टल ग्रोथ। अब ये क्रिस्टल ग्रोथ कैसे इफेक्ट करते हैं रॉक को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इन रॉकी कोस्ट वेव्स हिट द सी क्लिप, द वाटर इज अल्कलाइन, सम वाटर ड्रॉपलेट्स हिट द क्रैक्स इन द rocks. In this alkaline water, the soluble materials in the rock get dissolved. This leads to formation of small holes in the rocks. This is the effect of solution. अब हम देखेंगे कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं कि जहाँ पे वेव्स हमेशा ही आके कोस्टल एरिया को टकराती है, तो जो कोस्टल एरिया पे जो रॉक है वहाँ पे ये जो साल्टी वाटर है, अल्कलाइन वाटर है, वो वहाँ पे टकरा जाता है। तो टकरा जाने के कारण, ये बार बार स्थिति होने के कारण जो सोल्यूबल पार्ट है उस रॉक में का, जो कि इजीली डिसॉल्व हो सकता है, वो पार्ट क्या होता है कि डिसॉल्व होता है और उसके बाद उस रॉक के ऊपर छेद, मतलब होल्स क्रिएट होते हैं और उन होल्स में ये पानी एक्यूमुलेट हो जाता है। Alkaline water gets stored in these holes. Because of heat, this water turns into water vapor and only crystals of alkaline materials remain in the rocks. अब यहाँ पे क्या होता है कि सन के रेज के कारण, यहाँ पे हीट ज़्यादा होने के कारण उस पानी का जो कि उन होल्स में जो एक्यूमुलेट वाटर है उनका कन्वर्जन वेपर्स में हो जाता है और वो वेपर्स के फॉर्म में चला जाता है। लेकिन उस पानी में जो अल्कलाइन है, मतलब जो अल्कलाइन मटेरियल है, वो उन होल्स में वैसा के वैसा एक्यूमुलेट हुआ हम देख सकते हैं। तो उन्हीं को क्रिस्टल कहा जाता है। Crystals occupy more space. This causes tension in the rock. Holes are formed in the rocks. It looks like a honeycomb. तो उनको ज़्यादा जगह लगती है उन होल्स को, तो वो वहाँ पे ज़्यादा स्पेस तैयार करते हैं और उनको एक हनी कोम के जैसा शेप यहाँ पे आया हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं कि एक हनी कोम के जैसा शेप यहाँ पे आया हुआ देखा जा सकता है।
नेक्स्ट वन फैक्टर है जो कि रिलीज ऑफ प्रेशर। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने लास्ट के पॉइंट्स में देखा कि प्रेशर के कारण जो रॉक है उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, लेकिन प्रेशर रिलीज होने के कारण भी रॉक जो है वो टूट जाता है। तो वो कैसे? It is not that tension is created in the rocks only because of temperature, freezing of water or crystallization. The outer layers of the rocks exert pressure on the inner or lower layers. When this pressure ceases to exist, the lower or inner layers get freed from the pressure. This also leads to weathering. मतलब यहाँ पे हमने देखा कि टेम्परेचर ज़्यादा या कम होने के कारण या क्रिस्टलाइजेशन के कारण रॉक जो है वो डिवाइड होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, लेकिन प्रेशर रिलीज होने के कारण भी यहाँ पे रॉक जो है वो टूट सकता है। रिलीज ऑफ प्रेशर, इरोजन रिमूव्स मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ मास और ऑफ रॉक। दिस रिड्यूसेस प्रेशर ऑन द रॉक एंड कॉजेस इट टू क्रैक। Next one, water. Water, it is called universal soluble. Some areas experience more rainfall than others. In such areas, soaking of rock water also causes weathering of some rocks like sandstone. That is called conglomerate. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पानी के कारण भी वेदरिंग होती है। तो बारिश के कारण या पानी के कारण वेदरिंग कैसे होती है? तो कुछ एरियाज होते हैं कि जहाँ पे बहुत ही बारिश होती है, तो ऐसे एरिया में रॉक जो होता है वो रॉक का सोकिंग हो जाता है। मतलब यहाँ पे मराठी में देख सकते हैं चिंब भिजलेला, मतलब वहाँ पे जो रॉक होता है वो बहुत ही वेट रॉक हम देख सकते हैं। तो ऐसे एरिया में रॉक क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी में भीगने के कारण उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का कन्वर्जन सैंडस्टोन में हो जाता है। These rocks are formed because of pressure on the agglomeration of sand particles. ग्रैनुलर वेदरिंग। अब ग्रैनुलर वेदरिंग किसको कहा जाता है? तो ये सैंड पार्टिकल्स कन्वर्ट होने के बाद आगे की प्रोसीजर क्या होती है? तो वो होती है ग्रैनुलर वेदरिंग। मड ऑल्सो मेक्स सैंड पार्टिकल्स कम टुगेदर। When water penetrates such rocks, the particles get loose and separate from the main rock. This is called granular weathering. मतलब जो मेन रॉक होता है जिसमें पानी घुसने के कारण इसमें जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो मेन रॉक से अलग हो जाते हैं और उनमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। तो इन बाहर निकलने वाले छोटे पार्टिकल्स को ग्रैनुलर वेदरिंग कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि छोटी छोटी रेती या छोटे छोटे सैंड पार्टिकल देखे जा सकते हैं, तो उसको ग्रैनुलर वेदरिंग कहा जाता है। उसके बाद ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन मतलब दो पार्ट में डिवाइड होना। तो ये कैसे होता है? समटाइम्स बोथ टेम्परेचर एंड वाटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग। डिफरेंस इन टेम्परेचर कॉज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन वाइडनिंग द जॉइंट्स ऑफ द क्रैक्स इन द रॉक. Water accumulates in such wide joints and big blocks of rocks separate from each other. This is called block disintegration. तो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होने की दो यहाँ पे रीजंस दिए गए हैं। पहला है टेम्परेचर के कारण। टेम्परेचर के कारण बहुत हाई टेम्परेचर होने के कारण या बहुत लो टेम्परेचर होने के कारण एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है, रॉक टूट जाता है। दूसरा रीज़न यहाँ पे दिया है वाटर। अब जो रॉक के जो क्रिवाइसेस या क्रैक्स होते हैं उनमें जो पानी एक्यूमुलेट होता है उसका कन्वर्जन सॉलिड में या आइस में होता है, उसके कारण भी रॉक के ऊपर टेंशन आ जाता है और रॉक जो है वो डिवाइड हो सकता है। तो इसके कारण डिसइंटीग्रेशन होता है, ब्लॉक डिवाइडेशन होता है, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब रॉक जो है वो टूट जाता है।